Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 23314444, 23310481 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। धन्यवाद प्राची, धन्यवाद निश्चित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए श्रोताओं, डालें एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर। The benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. Wall Street wraps up week with strong gains, buoyed by macroeconomic data, and UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी में आधे प्रतिशत से अधिक का उछाल आया। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से मिले लाभ साथ वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया और डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी संस्था पीसीआई ने स्पष्ट कहा है कि उपभोगकर्ता और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क यूपीआई लेन देन होगा। Before we proceed any further, here's an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और निश्चित मुंबई से हमारी पहली कॉल आ रही है। इनका नाम है विशाल। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। My question is related to foreign assets declaration and the tax to be paid on that. Now, I'm a foreign national and I have a foreign citizenship and I wanted to declare the foreign assets that I have and pay the tax on that. The income is purely passive income in terms of FD interest and dividends, etc. from mutual funds. But I've been told that because I have not declared it earlier, there is a very high penalty and interest, etc. clauses on the same, up to 10 lakhs per annum for every year that the income or the assets have not been declared. And since this was legislation or something related to this was passed in 2017, the amount payable would be extremely high. So, I mean, to the point that if it's actually true, then I would have to actually liquidate the assets just to even pay the tax on the same. So, I would want to ask the expert with regards to this as to is this correct and what are the interest and penalty provisions, etc. for this. And this was also said that because this was passed as part of black money, some curbing of that, so there could even be penal provisions though, even though this is... Okay, Vishal, we got your question and concern.
I think what has happened, in terms of giving it a miss has happened now because there is no provision, Vishal, where you can go back to so many years to revise this, first of all. There is a schedule in the income tax return which is called Schedule FA, Foreign Assets. And there is also a schedule called Schedule FSI, which is Foreign Source Income. So if you're generating income out of those assets, you're supposed to be declaring income. And whichever country you reside in, there is a double tax avoidance treaty. You can save the tax. Anyway, your question is relating to non-declaring these particular assets in your return. So I would suggest, Vishal, that you can revise the return which has just been filed, first of all. So you can revise if there is no corresponding income and you're declaring it now because there is no other way, you can go back so much. There is a provision, Vishal, of ITRU. It's called Income Tax Return Updated. But for filing that updated return, one has to declare extra income. So first year 25%, second year 50%, third year 60%. So I don't think simply because you're having an asset, you should declare additional income. So I think you don't have much choice. You'll have to forget what has happened then. But at least for the year which we are filing now, and if you've already filed, because we run past the dates now, 31st July was the date. So I would suggest for this year, which is 25-26, you revise your return, and in your Schedule FA, you fill up the assets which you have overseas. And I'm assuming while answering, Vishal, that you are a resident at this point of time. If you are a non-resident, which is you've stayed outside the country for more than 180 days, you don't need to declare at all, because for foreign citizens, this is not required. If you're an Indian resident means you've stayed in the country, then you need to declare. So based on what I said, you'll have to take a call. As for the historical part, the historical default, let me not scare you by giving penalties because you've spoken about the penalties earlier. So I don't want to create a fear in you. But then yes, you can revise this return, fill up, and just let it be a fresh beginning. In Hindi we say, jab jage tab savera. So we cannot, because you cannot revise earlier returns. There is only one provision where you can go to the PCIT, bring to his notice that I want to file, but that is mostly done when people have missed their refunds. In your case, there's no refund. So let us just start now. If there is a notice which you get, call us again. We'll try and suggest you an alternate as to how to sort it out earlier, but at least remove the default going forward, Vishal. दिल्ली से हमारे साथ प्रेमजीत जुड़ रहे हैं। प्रेमजीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, सारे टीम को मेरा प्रणाम, गुरुजी को भी मेरा प्रणाम। प्रणाम जी, गुरुजी। अच्छा, चलिए, प्रणाम जी। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी बात हुई थी काफी सीक्रेट लोगों से। सर, ये जो हम लोग के जहाजे में जो कुछ अटैक वटैक हो जाते हैं, तो पहले सर ये युद्ध जोन में आता था, जिसको हम लोग रिस्क जोन बोलते थे, हाई रिस्क जोन बोलते थे, कहीं कहीं सोमालिया समथिंग लाइक। लेकिन अब तो सर ये साइमल्टेनियसली हर जगह पर हो रहा है। और सर इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं कि साहब हम इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह फंड नहीं दे, इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। तो सर इसका क्या समाधान है सर? क्या हमारी सरकार इस पे कुछ एक्शन ले रही है? जो सीफेयर जा रहे हैं, अगर वो इस तरह के डिस्प्यूट में उनके ऊपर कुछ हो जाता है, वो मर जाता है या अंग भंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है कि साहब हम आपको इंश्योर्ड भेज रहे हैं यहाँ से, कि आपको मतलब हम इतना कंपनसेट करेंगे ओरिजिन वाइज, जोन वाइज, या जो भी फ्लैग वाइज, कुछ प्रकाश डालें सर इस पे। देखिए प्रेमजीत जी, आपकी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है। ये सी फेयरर्स के बात में बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जो लोग रहते हैं या जो लोग पानी के जहाज में बहुत महीने बिताते हैं, घर से दूर रहते हैं। ये बात ठीक है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आजकल थोड़ा सा उसमें रिजर्व्ड हैं, बहुत हाई रिस्क एक तरह से ये नौकरी बन गई है। तो मुझे लगता है इसमें प्रेमजीत जी, जो मैं बात आपको कहना चाहता कि जिस भी वेसल पर ये सी फेयरर्स जाते हैं, और मेरी जानकारी मुझे पता है इस मामले में दुरुस्त है, वो वेसल आपको इंश्योरेंस देता है। आप जब पानी के जहाज पर बहुत दिन तक रहते हैं, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने रहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वो शिपिंग लाइन देती है। तो शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस तो आपके पास है ही, और वो इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता कि 10-20 हजार रुपए का होता है, वो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है। आपकी जो सैलरी होती है उसका वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उतने एक्स टाइम्स वो इंश्योरेंस देते हैं। तो आपकी बात ठीक है कि भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को भी या भारत सरकार को, देखिए जब आप निजी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपकी निजी कंपनी में नौकरी आपकी चॉइस से है, आपने स्वयं ऐसा प्रोफेशन चूज किया है। मुझसे सवाल प्राची और निशित पूछा गया एक जगह के भाई इनके लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए अब ये तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसी नौकरी, जब तक ये सब तरफ युद्ध चल रहा है और तब तक मैं समझता हूं ऐसी नौकरी से अगर बच सके तो बचें, और खासकर ये नहीं तो कम से कम उस रूट पे ना जाएं। आप इधर ट्रैवल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, पर उस रूट पे ना जाएं। पर अब मजबूरी है, अगर जाना ही पड़ता है
तो आप अपनी शिपिंग लाइन से बात करिए, वो शिपिंग लाइन से ही आप रिक्वेस्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका इंश्योरेंस बढ़ा दे। बाकी यहां पर आपकी बात दुरुस्त है, अगर भारत सरकार के कोई नुमाइंदा हमारी ये बात सुन रहा है तो मैं उनसे भी आपकी तरफ से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की तरफ से भी अगर कोई कॉम्पनसेशन, कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया जाए। आपकी सलाह हमने नोट कर ली है और जब भी कभी मुझे निजी तौर पर मौका मिला मैं इसको जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दिल्ली से हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं। हम अमित की कॉल लेंगे, मगर उससे पहले आइए जयपुर से जुड़े जितेंद्र से। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद सर। जैसे आप एफएमसीजी बोलते हैं, एफएमसीजी सेक्टर के लिए 2-4 सेक्टर आप बताएं। तो एफएमसीजी में भी जैसे कई तरह का है, जैसे डाइवर्सिफाई एफएमसीजी, पर्सनल प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है क्या? तो पहला तो प्रश्न ये है। और दूसरा कि एक देश का पहला या दूसरा प्राइवेट बैंक है, उसके भी कुछ शेयर के दाम गिरे हैं, तो मैं उसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर रहा हूं, तो क्या ठीक है क्या? जितेंद्र जी, एफएमसीजी जब हम बोलते हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो आपने जो जिक्र किया, कुछ कंपनियां खाने पीने की चीजों में है, जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इस प्रकार की चीजें बनाती हैं। अच्छा, कुछ ग्रोसरीज में है, शैम्पू, तेल, साबुन वगैरह, इस प्रकार की फेस क्रीम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इन सबको मिला के हम जितेंद्र जी एफएमसीजी बोलते हैं। और इनको फास्ट मूविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मान लीजिए टूथपेस्ट लेकर आए तो टूथपेस्ट आपका क्या हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा, साबुन लेके आए 5-7 दिन 10 दिन चलता है, ऐसे ही खाने का सामान लेके आए, बिस्किट, तो इनकी तो वैसे ही शेल्फ लाइफ होती है। तो हम जब एफएमसीजी जब मैं बोलता हूं तो मैं इन सबको मिला के बोलता हूं। खाने की आपने जो बात करी, खाने की भी हो गई, ये हो गई, मैं दोनों को मिला के बात करता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरे आपने प्राइवेट बैंक का बोला। प्राइवेट बैंक देखिए, नाम तो लेते नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से प्राइवेट बैंक का कह रहे हैं कि जिसके शेयर गिरे या कौन सा हुए। अब ये तो जब तक ये ऐसा सवाल है कि जब तक नाम ना खुले, और नाम हम लेंगे नहीं, ना आप लेंगे ना हम लेंगे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि आप किस बैंक के। बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें, इस साल तो नतीजे उतने बुरे नहीं रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अब मुझे नहीं पता किस प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात कर रहे हैं, कुछ एक के मिले जुले थे, बस ज्यादातर के अच्छे थे। तो ये तो जितेंद्र जी, जब तक नाम का राज नहीं खुलेगा, और वो खुलेगा नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इसमें। जी आइए निश्चित अब जुड़ा जाए अमित से। अमित हैं दिल्ली से। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। प्रश्न है ये है मेरा सर। जी सर, अभी जो ओमान और ईरान के बीच जो वार्ता चल रही है हॉर्मोन्स ओपन करने के लिए, तो आपको क्या लगता है सर कि ये वार्ता सफल रहेगी? और दूसरा प्रश्न ये सर कि हाल ही दिनों में, कल या परसों, अमेरिकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पे मंजूरी दी है जिसपे उन्होंने ये कहा कि रूस से इंपोर्ट करने वाली जितने कंट्री है उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को राइट्स मिल गया, तो क्या हम भी रूस से इंपोर्ट करते हैं तेल, तो क्या हम पे भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है क्या सर कि 100% टैरिफ लग जाएगा उनको? चलिए अमित, आपके पहले सवाल का जवाब, ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मूज पर कोई समझौता हो जाएगा नहीं, ये तो दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन। ये तो हर किसी के मन में है और हम सब चाहते हैं कोई ना कोई समझौता हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आवाजाही शुरू हो। मुझे लगता है मार्केट मंत्रा या कोई भी एक्सपर्ट इस पे टिप्पणी कैसे, इस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप भी स्वयं टिप्पणी नहीं कर पा रहे कंफर्म तौर पे खुलेगा कि नहीं, देखते हैं क्या समझौता होता है। जो आपने दूसरी बात पूछी, इसको हम बाई पार्टिसन ग्रुप है अमेरिका में, सेनेट में जिन्होंने ये बिल रखा था, इसको लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एंड ईरान 2025 बिल कहा जा रहा है। जी हाँ, 86-11 से ये बिल पास हो गया है सेनेट में। अब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा ये बिल, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा और उसको अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये पावर्स आ जाएंगे। 5 देश हैं इसमें, मैं बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि शायद इसका हम जिक्र मार्केट मंत्रा में अलग से भी इसके बारे में आज करेंगे। और इसमें इंडिया है, चाइना है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और अजरबैजान है। इन 5 देश सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलैटरल ट्रेड डील है उस पर लगातार बातचीत बहुत समय से चल रही है, और अगर ये हो जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए चिंता का सबब बन सकता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं इसका अमित, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या नतीजा आता है। पर आपका जो अंदेशा है, आपका जो डाउट है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, दुरुस्त है। जी Yes, Sharad ji, and continuing the story, the US Senate has voted to approve a bill to sanction Russia and key buyers of its petroleum products such as China and other countries, claiming that such trade helps fuel the Ukraine war. The bill
renamed as Lindsey Graham, sanctioning Russia and Iran Act of 2026 was approved by the Senate by an 86-11 vote. This bill will allow President Donald Trump to impose 100% tariffs on goods from countries that are the top 5 importers of Russian oil and gas. With that, the bill would also extend the expiration date of the Iran Sanctions Act of 1996 to till 2031, which penalizes companies that invest in Iran's energy sector. Sharaji would like to know, with the passing of this bill, of course, the other house has to pass the bill now. But even earlier, we saw a couple of months back as well that President Trump, in all his whims and his fancies, he would impose up to 100% or even more tariffs. So what difference does it make with this bill being passed and the earlier actions of President Trump? Okay, so let's understand this, because the current tariffs which were being agreed with India until now, they were a two-tier tariffs. One was the MFN tariffs, the most favored nation, basic 10%. And on top of then, Section 301B of the US Trade Act 1974, India was subjected to another 10% tariff. This was for forced labor, that India was probably using some raw material for forced labor and so on. So in all 20%, which wasn't bad for us, although India was protesting that we should not be tariffed because we are using forced labor, because there was no product in India which was going on forced labor. There was some Chinese imports, supposedly, which America said, which are using forced labor. So that was still okay, but this 100% would really put us in problem. As I said, there are 5 countries. There's India, there's China, there's Slovakia, Hungary and Azerbaijan. And out of the total Russian oil, about 50% of the oil is being imported by China. About 37% of the oil with Russia currently imports is being imported by India. For Indian imports, it's about 50%, which is the total 88% oil that we import. 50% is coming from Russia. So I think this will be extremely detrimental, because half of the oil we are importing from there. I hope it doesn't happen, because and I must clarify to the listeners that this passing of this bill in House of Representatives next week, hopefully, which is being anticipated, this will not impose tariffs on India by default. It gives powers to the President of the United States to impose. So let's see what President Trump decides after this bill is passed. But it's definitely a matter of concern for Indian exporters. Right. श्रोताओं, भू राजनीतिक गतिविधियों पर और भी विस्तार में बातचीत करेंगे। हमारे समक्ष शरद कोहली जी बैठे हुए हैं, आप भी उनसे अपना सवाल ले सकते हैं। मगर उससे पहले आइए जानते हैं कि सप्ताह के भीतर हमारे प्रमुख घरेलू सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उम्मीद से बेहतर पहली तिमाही के नतीजों के कारण ये बढ़त आई। आरबीआई की मौद्रिक नीति की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 405 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक बढ़कर 78,499 पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक यानी लगभग 0.8% बढ़कर 24,571 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1%, जबकि स्मॉल कैप 100 में इस सप्ताह 2.5% से अधिक का उछाल आया। इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में इस सप्ताह बढ़ोतरी हुई। सभी नामित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 494 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 21 पैसे पर बंद हुआ। इधर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से विशाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। जैसे मैंने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, मगर डिफेंस सेक्टर अभी थोड़ा सुस्त पड़ा है, क्या कारण है? और क्या कहते हैं, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला वो कब तक होगा? डिफेंस सेक्टर की आपने बात करी विशाल, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर भारत का एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर है। उसमें बहुत ही शेयर्स में आगे ऊपर जाने की संभावना नजर आती है। भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर हो रहा है और अब तो भारत एक्सपोर्टर बनता जा रहा है डिफेंस का, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर की चुनिंदा कंपनियों में कंपनी का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए विशाल। थोड़ा सा लंबे वक्त का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। बीच बीच में ये जो फेसेस आते हैं
जब बिल्कुल शेयर स्थिर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उससे जो निवेशक होते हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी होती है कि भाई पैसा लगाया हुआ है, बढ़ तो रहा नहीं, इससे अच्छा तो बैंक में ही रख देते। बहुत तरीके के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। तो विशाल, ये लंबे वक्त को रखने की चीज है, इसको रखिए आप, 2 से 5 साल का नजरिया रखिए, ये बहुत बढ़ेगा। दूसरा, आपने कहा ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कब होगा, मुझे लगता है ये तो ऐसा सवाल है कि वो एक पुरानी पिक्चर का वो था, कटप्पा को किसने मारा, ये इस टाइप का सवाल मुझे नजर आता है, क्योंकि ये तो सारी दुनिया इस सवाल की तलाश कर रही है कि कब होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये समझौता दुनिया में शांति लाएगा। तो जैसे आपके दिमाग में सवाल है, और ये हम सभी यहां जो बैठे हैं, हम सबके दिमाग में सवाल है, काश हम आपके सवाल का ये जवाब दे सकते, और अगर दे सकते तो फिर हम तो चाहते हैं कि आज, अभी, बीते हुए कल में ही हो जाए। बिल्कुल। भिलाई से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्ते प्राची जी, मार्केट मित्रा टीम को नमस्ते, और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर जी, इनकम टैक्स में यदि किसी का सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही अर्निंग है और 1,80,000 रुपए के करीब आता है, मतलब 4 लाख से कम है जी, तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना अभी भी मैंडेटरी है कि अब वो न करके भी कोई दिक्कत नहीं है? रवि जी, अगर खाली इंटरेस्ट इनकम है, और ये देखिए कि कहीं इंटरेस्ट पे टीडीएस तो नहीं कटा है, अगर रिफंड है तो फिर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, वरना रिफंड कैसे आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी इनकम, आपने बताया कि बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो फिर तो जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, रिफंड कैसे आएगा। और मैं 2-4 चीजें और बता दूं, कुछ लोगों को वैसे ही फाइल करना मैंडेटरी होता है। मान लीजिए आपने 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे, 10 लाख क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया है, आपने विदेशी यात्रा करी है, आपका 2 लाख से ज्यादा बिजली का बिल, 1 लाख से ज्यादा साल का बिजली का बिल आया है, तो अब ये सब चीजें भी बता दी गई है, तो ये भी देखनी पड़ती हैं। पर सबसे ऊपर जो रहता है वो ये है कि आपको अगर रिफंड लेना है रवि जी, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न फाइल करना एक अच्छी बात है, और अगर आपकी कोई इसमें कॉस्ट नहीं आ रही है और वो आ रही है, तो आपको रिटर्न फाइल की हुई, अक्सर कल को वीजा लेना है, कोई लोन लेना है, आपके काम आ सकती है। पर हाँ, टेक्निकली देखें, रिफंड नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बेशक ना भी फाइल करें तो चल जाए। बीइंग अ सिविलियन ये हमारी जिम्मेदारी भी है। नहीं, जिम्मेदारी है, पर उसमें प्राचीन का सवाल यहां से आया कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे हाँ, क्योंकि अगर ये सब चीजें जो मैंने बोली ये है, फिर तो जिम्मेवारी है, पर इनका सवाल ये था कि इनमें से कुछ नहीं है, इनका 4 लाख से कम है, तो फिर फाइल करें ना करें, तो तकनीकी जानकारी भी मुझे लगता है हमें देना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ राम किशन जी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हाँ, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी रामकिशन जी, सीनियर सिटीजन हूँ मैं, तो मेरी इनकम जो है ब्याज से है जी, हाँ, 10-5 हजार वैसे इनकम हो जाती है टोटल, तो 3 तो आयकर रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है। रामकिशन जी, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। रामकिशन जी बहुत वरिष्ठ नागरिक, आप आवाज से बहुत वरिष्ठ लग रहे हैं, बहुत सीनियर लग रहे हैं, हम आपको पहले तो प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आपकी इनकम, अभी आपसे पहले भी जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, मुझे लग रहा है रामकिशन जी, अगर जो आप इनकम बता रहे हैं इसमें तो जरूरी नहीं है, पर ये देख लीजिएगा कहीं टैक्स वैक्स तो नहीं काट लिया है बैंक ने, आपकी जो ब्याज से इनकम है। अगर टैक्स कटा है रामकिशन जी, फिर आपको फाइल करनी जरूरी है, वरना देखिए, मैं प्राची निश्चित तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो कितने जिम्मेवार हैं। उनको लगता है कि हमारी थोड़ी भी इनकम है, और आयु के इस स्टेज पर वो अभी भी चाहते हैं कि वो कहीं उनसे कोई कंप्लायंस में गलती ना हो जाए, और यू नो दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। रामकिशन जी, बिल्कुल, अगर इनकम टीडीएस नहीं कटा है तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, और हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर इज शंकर फ्रॉम भोपाल। शंकर जी, वेलकम। नमस्ते मार्केट मंत्री, नमस्कार जी। सर, ये जो वी आर इंपोर्टिंग अबाउट 55% recent report oil from Russia, crude oil from Russia, and also it is well known that a lot of refineries have been devastated in Russia by Ukraine. So we are also re-exporting diesel and petrol to back. So what is the refining margin, and who are the beneficiaries, companies? Will those shares be benefited? Will as investor, ठीक है, वो रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं है एक तरह से, हमें उसमें क्या बेनिफिट ले सकते हैं? क्या प्राइवेट रिफाइनरीज के शेयर्स में अभी कुछ छाल आ सकता है, या आएगा, या फिर ये जो ट्रम्प की नई कहानी बना रहे हैं कि अब वो उसमें भी टैक्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा रुकावट लगेगी? ये रिफाइनिंग मार्जिन आया तो होगा, किसको मिला होगा, किन कंपनी, प्राइवेट कंपनीज को? तो क्या उसके शेयर में फायदा है या नहीं है? सरकार ने तो शायद से नहीं किया होगा।
Can you highlight on these? Shankar ji, देखिए, it's a very good question first of all, because Shankar, I think your question emanates from the fact because this is a double-edged sword. Whereas on one side, these oil marketing companies, because of fluctuating crude oil prices, under recovery from the customers when the crude oil price is high, the cost is high, and you're not charging as much, there's under recovery on petrol, diesel, LPG. On the other side, yes, you're right, we are importing from Russia for export also. So, it's a double-edged sword. So refining margin varies, but your question is private companies, yes. Like for example, the Jamnagar refinery in India is one of the finest refineries. And that can also refine the Western Texas Intermediate oil, which is the harder oil. It's not the sweet oil. Sweet oil, yeah. And that is very tough to refine. So we are one of the finest refiners in the world. And Russia, despite being one of the largest producers of oil, is because of refineries being damaged, it is sending it to India, and it had a shortage of petrol and diesel for that matter. So refining margin is fairly healthy, but the problem is that refining margin comes under pressure because the domestic sale becomes a loss-making proposition. So it's a mixed bag, I would say, Shankar, to answer your question. Whether to invest or not, I would advise that for some time till the matters settle, it will not be a bad idea to stay away from oil companies for retail investors. Right, and moving on to the US markets, the Wall Street ended higher yesterday as traders interpreted an unexpected decline in the US jobs in July as a sign that the Federal Reserve may not need to raise interest rates soon. And among the major indices, the Nasdaq Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 rose 0.6% to settle at a record closing high of 7,757. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. For the week, the Nasdaq surged 5.2% and the S&P 500 soared 3.6% and the Dow climbed 3%. On the economic front, the U.S. Labor Department said non-farm payrolls fell by 23,000 in July, while the unemployment rate edged down to 4.1% in July from 4.2% in June. Sharaji, very briefly, how do you see the interplay of the U.S. Senate bill, which was just passed in the Senate, with the U.S. markets behaving in the coming maybe a week or 10 days' time? Well, U.S. markets have been going gung-ho, if you ask me, throughout the war. And I think this data this data is a very interesting data, because on one side, this is bad, that people are not getting jobs, the job data. On the other side, what is taken positive out of this data is that there's going to be no inflation now, or lower inflation, which means the Fed may not hike the interest rates. So this turns out to be a double-edged kind of an announcement. Overall, I think the American markets see more on the positive side. So we are expecting the market to surge. In fact, you saw the commodity markets rising because of this. Right. Next caller is Virender from Delhi. Virender ji. Namaskar. Namaskar. Copy to all. Dr. Kohli, मैं एक बात प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है जी, और अमेरिका जिस दिन से टैरिफ ज्यादा लगा रहा है बदला लेने के लिए या डराने के लिए जी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मार रहा ना अमेरिका, हमारी जैसी मार्केट को छोड़ करके। अगर हम ना भी बेचें तब भी हमारा काम बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हमने कम से कम 40 देशों से हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे लिए फायदेमंद है। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने तो जवाब खुद ही दे दिया, मेरे लिए जवाब छोड़ा ही नहीं है। बहुत आप जो कह रहे हैं सब पे कॉपी टू ऑल मैं टिक मारता हूं, और आपके लिए कॉपी टू ऑल, आपने सब बहुत बढ़िया बात कही है। और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ती है, इससे उनके देश में महंगाई बढ़ती है। टैरिफ आखिर लगता किस पे? खुद पे ही तो लगता है, इंपोर्टर्स पे लगता है और अमेरिकी जनता को देना पड़ता है। आपने तो सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वीरेंद्र जी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने घोषणा की है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई मुफ्त बना रहेगा। एक वक्तव्य में पीसीआई ने कहा कि हर भारतीय बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के तुरंत डिजिटल पेमेंट कर सकता है। इसने यह भी बताया कि छोटे व्यापारियों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पीसीआई ने कहा कि यूपीआई की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और आरबीआई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी से बचाव और इनोवेशन में
निवेश कर रहे हैं। पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि मर्चेंट सर्विस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कोई भुगतान करना पड़ेगा। ये किस तरीके से एक भ्रम तोड़ा गया है कि शायद आम ग्राहकों को भी जो है इस पर भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, लोगों में एक भ्रम फैल रहा था कि शायद हमको देना पड़ेगा 2000 रुपए से ऊपर के, और ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। ये जो जिस व्यापारी से आप डील कर रहे हैं वो भी बड़ी पेमेंट पे उनको देना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है। तो मुझे लगा सरकार ने उस भ्रम को क्लियर कर दिया। हाँ। लोगों के लिए यूपीआई फ्री बना रहेगा। और सच बात बताएं, अगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी भी तो सब्सिडाइज हो रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए लोगों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए। Thank you so very much, Sharad ji. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices rise for the second consecutive week. Sensex and Nifty jumps over 0.5%. The Wall Street wraps up week with strong gains buoyed by macroeconomic data, and the UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies the Apex Digital Payments body PCI. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.